स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरवैया एकेडमी। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपके फोर्थ यूनिट में से जो फोर्थ पोएम है दैट इज द हाइट ऑफ द रिडिकुलस, इसका जो वर्कशॉप है वो देखने वाले हैं। तो फिर चलिए वर्कशॉप की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट एक्सप्रेशंस फ्रॉम द पोएम दैट इंडिकेट फनी मोमेंट्स। तो हमें पोएम में से ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस ढूंढने हैं जो फनी मोमेंट्स को इंडिकेट करते हैं। Here we have given one example, I laugh as I would die. Like that, we have to find the other examples from the poem. Answer. There will be the devil to pay. His face was all upon the green. Second, he broke into a road. His waistband split. Lastly, he brushed 5 buttons off and tumbled in a fit. Here we complete the first question. Now move towards the question number second. The question second is of order of sequence. Arrange the following reactions in their proper order as per the poem. तो हमें यहाँ पे कुछ reactions दी गई है and उन्हें proper order में क्या करना है, place करना है. Okay? The first of all हमें जो reactions दी गई है वो देखते हैं and afterwards we will arrange them in a proper order. The given order is that his waistband split. Second, the green grew broad. Third, sleepless eye. Fourth, was all upon the green. Fifth, he broke into a road. And lastly, he brushed 5 buttons off. अभी इनका जो proper order है वो हम लिखेंगे. Answer. First, was all upon the green. Second, the green grew broad. Third, he broke into a road. Fourth, his waistband split. Fifth, he brushed 5 buttons off. And lastly, sleepless eye. In this way, we have completed the second question too. Now move towards the next question, that is question number 3. ये question number 3 क्या है अब हम देखते हैं. Form pairs and find out the various rhyming words in the poem and 2 of your own. Complete the following table. आपको pairs बनानी है, मतलब ये क्वेश्चन आपको आपके फ्रेंड के साथ पेयरिंग करके सॉल्व करना है. तो आपको क्या करना है, पोएम में दी गए कुछ वर्ड्स है उनके राइमिंग वर्ड्स पोएम में से ढूंढ के लिखने हैं एंड आपके खुद के भी उसमें ऐड करने हैं. ओके, सो वी विल डू इट. फर्स्ट, हियर फ्रॉम द पोएम हियर मोर ऑफ योर ओन नियर में. इसके अलावा भी अदर वर्ड्स आप इसमें ऐड कर सकते हो. सेकंड, विद इन ग्रीन थिन मीन. Afterwards, man, can, ran, van. Fourth, split, fit, bit, need. Fifth, way, pay, day, hay. Him, limb, sim, dim. Afterwards, guy, I, my, why. And lastly, mood, good, wood, and could. Here we complete the first question too. Now move towards the third question. Now move towards the question number 4, that is match the lines with the figure of speech. तो हमें यहाँ पे पोएम में से कुछ लाइंस दी गई हैं एंड हमें उनके जो प्रॉपर फिगर ऑफ स्पीच है उनसे पेयरिंग अप करना है. फर्स्ट लाइन, इन वंडरस मैरी मूड टोटोलॉजी. सेकेंड, दे वर सो क्वेयर सो वेरी क्वेयर रिपीटेशन. थर्ड, एंड सॉ हिम पीप विद इन टोटोलॉजी. फोर्थ, द ग्रीन ग्रीव ब्रॉड alliteration and short from ear to ear hyperbole. He brought into a road onomatopoeia. And lastly, 10 days and nights with sleepless eyes, that is transfer epithet. Here we complete this fourth question too. Now move towards the next question, which is our question 5, and it depends upon syllables. तो syllables को हमने warming up में भी पढ़ा था, उसी के बारे में ये क्वेश्चन है. Fifth question, copy any 2 stanzas of the poem in the lines below using a colored pen. Underline the stressed syllables in each line and put a stress mark over there. Stress word from first and second stanza. मतलब हमें क्या करना है, जो syllable words है उन्हें underline करना है and उन्हें उन पे stress mark भी put up करना है. Okay? So first and second stanza में कौन से words stress words से देखिए. Stressed words from first and second stanza are wondrous, thought, exceedingly, queer, die, way, and I. अभी यहाँ पे जो बहुत सारे वर्ड्स है उन पे आपको स्ट्रेस मार्क्स दिखेगा
तो वो सभी वर्ड्स क्या है, स्ट्रेस वर्ड्स है, सिलेबल वर्ड्स है। तो यह आप नोट डाउन कीजिए और ध्यान में लीजिएगा। आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपकी जो क्रिएटिविटी है उसे बढ़ाने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए दिया गया है। What does it say? Let's complete the lines of the poem by choosing proper pairs of rhyming words and make meaningful. तो हमें यहाँ पे कुछ लाइन्स दी गई है पोयम की, एंड लास्टली वी हैव गिवन सम वर्ड्स इन ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में दी गई जो वर्ड्स है वो सभी एक दूसरे के राइमिंग पेयर्स है। तो हमें क्या करना है, ये जो वर्ड्स है उन्हें प्रॉपर लाइन में लिखना है एंड लाइन्स को कंप्लीट करना है, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ओके, सो लेट कंप्लीट इट। वी रिटर्न होम लेट वन नाइट, इन द विंडो देयर glowed a light. Blood glares, I was our very first thought. For defense, sticks and stones we sought. Let's grab the loot and run, was uttered soft by someone. The door was softly unlocked, and then we were truly shocked. Oops, before outside we had gone, the television had been left on. And in this way we have completed it. तो जो राइमिंग पेयर्स थे वो हमने प्रॉपर अप्रोप्रिएट लेस में पुट अप किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप एक्टिविटी एंड यू हैव टू डू इट इन योर क्लास विद द हेल्प ऑफ योर क्लासमेट्स एंड योर स्कूल टीचर। तो ये 7th क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। फॉर्म ग्रुप्स इन योर क्लास and together compose a short humorous poem. Use jokes, expressions, etc. and convert it to a poetic form. Write and decorate it on a chart paper and put it up in your class in turns. आपको क्या करना है, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हो उन सबके अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं और आपको एक ह्यूमरस पोएम क्रिएट करनी है। मतलब आपको खुद को उसे क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। एंड आप उसके लिए बहुत सारे जोक यूज कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस यूज कर सकते हैं एंड उन्हें एक बहुत अच्छा सा पोएटिक फॉर्म दे सकते हैं। जब आप एक पोएटिक फॉर्म क्रिएट करोगे तो उसे आपको चार्ट पेपर पे डेकोरेटिवली लिखना है एंड आपको उसे आपके क्लास के सामने प्रेजेंट करना है। तो यह एक्टिविटी आप खुद से करिए, उसमें इसके लिए आप आपके टीचर की हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। Go through the poem and write an appreciation of the poem in a paragraph format. Refer to page number 5. तो आपको पोएम में जाना है एंड जो हमारी पोएम है द रिडिकुलस ऑफ द हाइट ऑफ द रिडिकुलस, इसका जो एप्रिसिएशन है वो आपको लिखना है। तो अब हम एप्रिसिएशन लिखते हैं। आंसर द पोएम द हाइट ऑफ द रिडिकुलस बाय ओलिवर वेंडल होमलेस It's a humorous poem written for enjoyment with plenty of funny expressions. The main purpose of the poet is to simply entertain his audience. The rhyme scheme of the poem is ABCB. There are many figures of speech, but the one that stands out is transferred epithet. In the line 10 days and night with sleepless eye, the adjective sleepless should be for the man and not for the eyes. This is a humorous poem. The special feature of the poem are the expressions that indicate funny moments. The poet says that once he wrote some extremely humorous lines, though mentions that he was a serious man. He told his servants to print those lines. His servants followed his order and secretly peeped onto the lines. After writing those lines, he made some humorous reaction, such as smiling, chuckling, laughing loudly. At the end, his waistband split and he burst into 5 buttons because of laughing. Since then, the poet resolved not to write such humorous lines again. तो हमने यहाँ पे एप्रिसिएशन लिखा है। उसके बाद इस वर्कशॉप में से लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच इज अ प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है देखते हैं। रीडिंग अ पोएम, आपको एक पोएम रीड करना है। अरेंज द पोएट्री रीडिंग कॉम्पिटिशन, सिलेक्ट द पोएम ऑफ योर चॉइस। आपको पोएट्री रीडिंग कॉम्पिटिशन अरेंज करना है एंड आपको एक पोएम सिलेक्ट करना है। रीड द पोएम साइलेंटली
पोयम आपको साइलेंटली रीड करना है। रिपीट द रीडिंग ऑफ द पोयम, पोयम की रीडिंग आपको रिपीट करना है। फोकस ऑन द पॉजेस, स्ट्रेस, इंटोनेशंस एक्सेट्रा। पे अटेंशन टू द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशंस। तो जो पोयम में आने वाला है पॉज है, स्ट्रेस है, इंटोनेशंस है, उसे आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरह से रीड करना है, उसे उसको यूज करके रीड करना है एंड प्रोनाउंसिएशंस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे इस पोयम का जो वर्कशॉप था वो यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। तो इसी तरह से इस पोयम से रिलेटेड जो अदर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिखने वाले बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, वहां पे ऑल कीजिए ताकि आपको वीडियो के बारे में सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह से सभी क्लास के सभी सब्जेक्ट के वीडियोस एक ही जगह पे देखने के लिए प्ले स्टोर पे जाइए, गुरुवैया एकेडमी सर्च कीजिए और हमारा यह एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। यह एप्लीकेशन सबके लिए बिल्कुल फ्री है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करते समय अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है उस पर मैसेज कीजिए ताकि हमारी टीम आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में मदद कर सके। इस एप्लीकेशन में आपको चैप्टर से रिलेटेड लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट, ये सभी चीजें मिलेंगी। तो पढ़ाई के लिए इस एप्लीकेशन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिएगा। इस एप्लीकेशन में हमने चैट सेक्शन भी दिया है जिसके भीतर आप आपके सभी डाउट्स आपके जो अदर क्लासमेट्स हैं उनके साथ मिलकर ग्रुप डिस्कशन करके सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे टीचर्स भी है, उनके साथ भी डिस्कस करके आप आपके सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की एजुकेशनल हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप हमारा जो ऑफिशियल नंबर है उस पर मैसेज कीजिए ताकि हमारी टीम आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल कर, हमारी टीम आपको उस संदर्भ में मदद कर सके। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम यहीं पे रुकेंगे। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में नए वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर।